Hello friends, today we are going to learn about adverbs. So basically this video is for standard 7th and 8th. So some topics are there which will be covered at the last of the video. That will be for surely for 8th standard. So in short, this video is for 7th and 8th, but some topics, extra topics are there which will be covered for the standard 8 at the end of the video. So we'll see the definition of an adverb. A word which modifies the verb, the meaning of a verb, an adjective or another verb. अनदर एडवर्ब इज नोन एज एन एडवर्ब. देखिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि एक वर्ब की मीनिंग उसे मॉडिफाई करना या तो कोई एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना. जैसे हमने एडजेक्टिव को देखा था. एडजेक्टिव which shows the quality of a noun, but here we can see the adjective was totally related to noun, but here we can see the adverb is totally related to a verb, an adjective or another adverb. Let's roll on to the example so we could understand the topic easily. See, we can see here there is a green chart. Modifies or describes a verb, an adjective or another verb which we had seen already. He ran quickly. See, ran here is basically the verb. So how did he run? It shows how, when or where. So he ran quickly. So I may ask a question, how did he run? So there might be an answer. He ran quickly. The way, the manner he ran. How did he run? He ran quickly. She left yesterday. She left, but when? So this is the question here. So she left yesterday. We went there. Where? This would be the question if somebody is listening. Where did they go? And it was too hot. To what degree or how much? Too hot means we have to mention it. How much degree or in what manner? So basically these are the uses of adverb. Examples. She writes quickly. How does she write? She writes quickly. See, it qualifies the verb writes. Lucy is very beautiful. Very qualifies the adjective beautiful. It shows her beauty, that her beauty is very much. Lucy is very beautiful. John approached the wounded dog very slowly. So here very also qualifies the adverb slowly. It is qualifying the adverb slowly. Slowly is already an adverb, but it is qualifying the adverb again. So adverb can be classified as, number one we see here, adverb of time. It is also related with time. Adverbs of time tells us at what time or when or for how long the situation or the duration or action took place. See, we can see here, they were playing in the park last week. They were playing in the park last week. This action is in the past continuous tense, but the time mentioned is last week. And again we can see the positioning. Adverb of time are most often placed at the end of the sentence. So I think this is very familiar to you, that the time adverb or adverb of time is mentioned at the end of a sentence. So for example, I am going to watch a movie tomorrow. When are you going? This might be the question for this answer. When are you going? So I'm going to watch a movie tomorrow. She left yesterday. When did she leave? She left yesterday. So the adverb of time is basically added to the sentence at the end. However, we can sometimes place adverb of time at the beginning of the sentence also to put an extra emphasis on the time or duration being described. For example, next year I am going to run for president. So it is emphasizing. जैसे हिंदी में कहते हैं कि एक सेंटेंस पे वजन डालना, जोर लगा के जरा कहना. So next year I'm going to run for president. So I guess it is okay with you. We'll move on to adverb of frequency. Adverb of frequency show how often something happens. How often something happens. कौन से कितने फ्रीक्वेंसी में या कितने समय के बाद या कितने समय के अंतराल के बाद कोई एक्टिविटी हो रही है. इट शोज द फ्रीक्वेंसी. सम ऑफ द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आर ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरली, नॉर्मली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेशनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, एक्सेट्रा. ये सारी जो एडवर्ब्स है आपने सुना तो होगा, इवन पढ़ा भी होगा. तो वी विल सी
कि इसे कैसे यहाँ पे क्वालिफाई बताया जा रहा है, क्वालिफाई कैसे किया जा रहा है। पीटर यूजुअली प्ले फुटबॉल ऑन संडेज। इसका मतलब ये हो रहा है यूजुअली, मतलब ये कोई फ्रीक्वेंसी बता रही है, मतलब पीटर फुटबॉल खेलते रहते हैं, लेकिन कब? संडेज को, है ना। मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी जो है पीटर की संडे टू संडे रही है यहाँ पे। दूसरे एग्जांपल आप देखेंगे, सुजैन इज नेवर लेट, मतलब वो कभी भी लेट नहीं है। दैट मीन्स 100% वो कभी लेट नहीं होती। एक टेबल यहाँ पे दिया गया, हम देखेंगे कि परसेंटेज के हिसाब से जो हमें कौन सा फ्रीक्वेंसी यूज करना रहेगा सेंटेंस में। जैसे ऑलवेज हो गया तो 100%, जैसे ही ऑलवेज कम्स लेट, मतलब हमेशा ही वो लेट आते हैं, तो 100% की फ्रीक्वेंसी वहां दिखाई दे रही है। वी कैन सी यूजुअली, मतलब करीबन 90% फ्रीक्वेंसी हो गई। Then we have frequently for 80%, often for 70%, sometimes means कभी कभी, तो कभी कभी हो गया 50-50। ओकेशनली, ओकेशनली आते हैं, मतलब कोई त्यौहार हो गया, कोई या तो वार त्यौहार हो गया तो उस दिन वो आते हैं, मतलब ओकेशनली कोई इवेंट हो गया तो ही वो आते हैं। सेल्डम मतलब बहुत बहुत कम देखने मिलते हैं। यूँ आपसे आप अगर कहेंगे कि बहुत कम, कभी कभार ही वो दिखते हैं, या रेयरली, रेयरली भी ऐसे ही हो गया, थोड़ा फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो गया, बहुत कम वो दिखते हैं। नेवर मतलब कभी नहीं। तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी टेबल को समझ सकते हो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, बहुत इजी है। हम जाएंगे आगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पे हमें जगह को दिखाना है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल्स अस अबाउट an aspect of location associated with the action of verb, specifying the direction, distance, movement or position involved in the action. तो पोजिशन हम देखेंगे इसको कैसे यूज करेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस जनरली अपीयर इमीडिएटली आफ्टर द मेन वर्ब इन a sentence if it is intransitive, or else after the verb's object if it is transitive। देखिए, इंट्रांजिटिव एडवर्ब के लिए हम देखेंगे, वी वेर वॉकिंग नॉर्थ, हम चल रहे थे लेकिन किस तरफ? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। तो क्या हो गया यहाँ पे, जो प्लेस है, जो डायरेक्शन है वो दिखा रहे। तो क्या हो रहा है, इंट्रांजिटिव एडवर्ब फॉलोज द वर्ब, वर्ब के पीछे ऐड हो रहा है। एंड यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ही किक द बॉल इनटू द फील्ड। क्या किया? बॉल को किक किया। ट्रांजिटिव एडवर्ब फॉलोज द ऑब्जेक्ट, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए, बॉल को फील्ड में किक किया, और यहाँ पे हमने किसको फॉलो किया? एडवर्ब को, जो वर्ब है उसको फॉलो किया है। तो शायद कुछ लोगों को डाउट होगा यहाँ पे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, वी वर वॉकिंग नॉट, तो वॉकिंग वर्ब के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो जिस चीज को ऐसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे इंट्रांजिटिव। जबकि यहाँ पे किक द बॉल इनटू द फील्ड, तो बॉल को कहाँ पे किक किया? फील्ड पे किक किया गया। तो ऑब्जेक्ट की जरूरत यहाँ पे, सॉरी, बॉल की जरूरत यहाँ पड़ रही है। किसको किक किया? बॉल को। तो मतलब जिसे एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव। तो आई गेस ये आपको समझ में तो यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ 100% अगर हो गई तो ऑलवेज हम यूज करेंगे। तो उसका एग्जांपल है, आई ऑलवेज गो टू बेड बिफोर 11 PM। मतलब यहाँ पे डेली जो भी है आई, तो वो डेली 11 बजे सोने के लिए जाते हैं। तो मतलब ये ऑलवेज की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये रोज की एक्टिविटी होगी। 90% अगर हम देखेंगे, आई यूजुअली वॉक टू वर्क, मतलब मैं लगभग मैं चल के जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ। 80% वाली बात हो गई नॉर्मली या जनरली, आई नॉर्मली गो टू जिम, मतलब मैं जाता रहता हूँ। कभी कभी छुट्टी गिरती है लेकिन मैं जाता रहता हूँ। 70% फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे ऑफन या फ्रीक्वेंटली, आई ऑफन सर्व द इंटरनेट, मतलब मैं काफी कबार मैं इंटरनेट यूज कर लेता हूँ। मतलब 70% जैसी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऑफन के लिए रहती है। समटाइम्स हो गया 50-50, जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें टॉपिक में बताया था, आई समटाइम्स फॉरगेट माई वाइफ्स बर्थडे, मतलब मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। दैट मीन्स 50-50 के चांसेस रहते हैं, भूल भी जाते हैं, याद भी रहता है। एंड 30% फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे तो ओकेशनली हो गया। यहाँ पे आई ओकेशनली ईट जंक फूड, मतलब कभी किसी की बर्थडे हो गई या तो किसी का कोई पार्टी हो गया या कुछ हो गया, तो उस समय सिर्फ मैं ओकेशनली खाने के लिए जाता हूँ बाहर। और 10% की बात हो गया, सेल्डम, रेयरली और ऑलमोस्ट, मतलब कभी कभार, मतलब बहुत रेयरली मैं निकल, आई सेल्डम रीड न्यूज़पेपर, मतलब जैसे मेरे सामने रख दिया तो मैं पढ़ लिया, बहुत 10% की चांसेस होते हैं। 5 हो गया, हार्डली एवर, मतलब शायद ही कभी होता। आई हार्डली एवर ड्रिंक अल्कोहल, यहाँ पे एग्जांपल दिया, आई हार्डली एवर ड्रिंक अल्कोहल, मतलब मैं पीता ही नहीं हूँ लेकिन कभी किसी ने दे दिया। या तो कुछ हो गया हार्डली, मतलब बहुत मुश्किल से मैं पीता हूँ करके यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ। 0% की बात हो गई, नेवर, आई नेवर स्विम इन द सी, मतलब मैं कभी भी सी में
तैरता नहीं हूँ, स्विम नहीं करता हूँ। आई गेस ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो टेबल है उसके वजह से आपको थोड़ा बहुत टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एंड इट इज वेरी मच इजी, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कौन सा प्रायोरिटी रख के फ्रीक्वेंसी में यूज करना है। So now we will talk about adverb of manner. Manner, तरीका। Adverb of manner are used to tell us how something happens or is done. कैसे हो रहा है, तरीका क्या है। They can modify verbs, adjectives और clauses of a sentence. Even they can modify the clauses of a sentence. ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, जेनेट रोड द लेटर ब्यूटीफुली। लेटर तो लिखा है यहाँ पे, कैसे लिखा है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से लेटर को लिखा। और देखिए, ही क्वाइटली हेल्ड द कैंडल सॉफ्ट। उसने हेल्ड किया मतलब पकड़ा है, कैंडल के लॉफ्ट को पकड़ा हुआ है, लेकिन कैसे, क्वाइटली, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शांति से उसे हिले डुले वगैरह पकड़ के रखा है। तो देखिए यहाँ पे बहुत इजी है तरीका। कैसे, एक एग्जांपल लायन का दिया था, लायन रॉड फेरोशियसली। फेरोशियसली मतलब एकदम गरज के, एकदम दहाड़ना, एकदम जोर से, मतलब वो जिस तरीके जिससे लोग डर जाए। फेरोशियसली उसने रोर किया, तो उसका तरीका बताया जा रहा है कि लायन ने कैसे रोर किया। ठीक है, तो काफी इजी एडवर्ब ऑफ मैनर। हम इसे एग्जांपल्स में जैसे हम सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ा बहुत इजी रहेगा, लेकिन अब बेसिकली यहाँ पे समझना ये है कि तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप अगर सुनते हो तो किस तरीके से, हाउ, इन व्हाट मैनर। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब देखेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री काफी थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा आपके लिए, लेकिन एडवर्ब ऑफ डिग्री आर यूज्ड टू इंडिकेट द इंटेंसिटी, डिग्री और एक्सटेंट ऑफ द वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स दे आर मॉडिफाइंग। ये थोड़ा सा इंटेंसिटी या तो डिग्री, कितने हद तक, आप अगर बात करो कितने हद तक ये चीज हो सकती है, उसके किस लिमिट में ये काम हो रहा है, तो उसके लिए हम डिस्क्राइब करेंगे। दे ऑलवेज अपीयर बिफोर द एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब दे डिस्क्राइब, एक्सेप्ट फॉर द एडवर्ब एनफ। एनफ को यहाँ पे इसमें यूज नहीं करेंगे, एनफ के ऊपर ये लागू नहीं होता, बाकी हर चीज पे ये वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया और एडजेक्टिव के स्पेल। जैसे आई क्वाइट लाइक इंडियन फूड, मैं इंडियन फूड को लाइक करता हूँ, लेकिन क्वाइट मतलब काफी हद तक मैं इंडियन फूड को लाइक करता हूँ। माई कैमरा वॉज प्रिटी एक्सपेंसिव, तो माई कैमरा वॉज एक्सपेंसिव भी हम बोल सकते हैं, लेकिन इट वॉज प्रिटी एक्सपेंसिव मतलब ये काफी महंगी चीज है। ऐसा करके हम जब यूज करते हैं एक सेंटेंस, ये कैमरा काफी एक्सपेंसिव है, तो काफी बोलना वहां पे, काफी मतलब एनफ, एनफ नहीं हुआ यहाँ पे, प्रीटी को लेके मैं काफी बोल रहा हूँ। एंड आपको समझाने के लिए मैं हिंदी में इसे ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, बट अगला देखिए आप, आई एंजॉय द स्टोरी एनॉर्मसली, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस स्टोरी को एंजॉय किया, एकदम समझ के मैंने इसे एंजॉय किया। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख भी सकते थे आई एंजॉय द स्टोरी, लेकिन एनॉर्मसली एडवर्ब ऑफ डिग्री ऐड करना जरूरत है। हद दिखानी है, कितने हद तक मैंने, जैसे आप बोलते हैं मसाला ऐड करते हैं, मैंने यार बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की है। सिमिलरली आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि मैंने तैयारी की है एग्जाम की, लेकिन बढ़िया तरीके से मतलब आप उसकी इंटेंसिटी दिखा रहे हो, आप ऐसा बोल के बताना चाहते हो कि कितने हद तक मैंने तैयारी की है। आई नेवर वांटेड इट टू एंड, जैसे यहाँ पे स्टोरी एनॉर्मसली, आई नेवर वांटेड इट टू एंड, तो काफी इजी है वो। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, इसका मतलब क्या हो गया, अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव हो गया, नेगेशन मतलब नेगेटिव हो गया। द एडवर्ब which gives a positive or a negative response, a positive response या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव रेस्पॉन्स रिलेटेड विद द मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब के मीनिंग को लेके पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब को देते हैं इन सेंटेंस में, आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। शी सर्टेनली लव्स योर कुकिंग, तो यहाँ पे एग्जांपल है कि हाँ वो पक्की तरीके से, सर्टेनली मतलब इंडीड बेशक, वो बेशक आपकी कुकिंग को पसंद करती है। सर्टनली मीन्स वो पॉजिटिविटी दिखा रही है बहुत अच्छी तरीके से। श्योरली यू वुड एंजॉय हिज कंपनी, हाँ आप पक्की तरीके से उसकी कंपनी को एंजॉय करोगे। ये हो गया आपके हर चीज फॉर्मेशन दिखा रही है, या तो फिर थोड़ा सा सपोर्ट देके सेंटेंस को, भाई हाँ हाँ ठीक है आप जाइए, हो जाएगा आपके साथ काम, जैसे हम कहते हैं। तो अफर्मेशन यहाँ दिखाया जा रहा है। इंटरोगेटिव की बात हम करेंगे तो द इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आर व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। तो इंटरोगेशन जैसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आपने देखा था जहाँ पे डब्ल्यूएच फॉर्म और हाउ वाला फॉर्म यूज हो रहा था, तो दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए यूज किया जाता है, जैसे व्हेन इज यूज टू आस्क अबाउट टाइम, ये तो आपको पता है। व्हेन जो है समय के लिए, वेयर जो है जगह के लिए, व्हाई जो कारण जानने के लिए, हाउ मतलब किस तरीके से हो रहा है, और विच मतलब कौन सा, आपको क्या चाहिए, तो चूज करने के लिए आपको जो ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें मैटर करती है कि किस लिए पूछा जा रहा है, किस तरीके से, समय के लिए पूछा जा रहा है या फिर क्वांटिटी और अमाउंट के लिए पूछा जा रहा है, तो वो सारी चीजें है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल है व्हाई आर देयर एम्प्टी बियर बॉटल्स इन द गार्डन। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए तो क्यों एम्प्टी बियर बॉटल्स गार्डन में क्यों पड़े, तो एक रीजन पूछा जाता है, तो इसका रीजन होगा जो भी होगा रीजन, लेकिन यहाँ पे जो वाई के साथ जो पूछा जा रहा है वो हो गया आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब, क्यों। सो वेयर इज योर सिस्टर,
आपकी सिस्टर कहाँ है, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। व्हेन आर यू गोइंग टू ग्रो अप, आप कब बड़े हो जाओगे या कब बड़े हो रहे हो, ये छोटी छोटी सिली सिली थिंग्स यू आर डूइंग, व्हेन आर यू गोइंग टू ग्रो अप। सो हाउ कैन यू ईट अ फ्रीजर फुल ऑफ पिज्जास इन वन इवनिंग, एक शाम के अंदर आप पूरे फ्रीजर से भरा हुआ पिज्जास कैसे खा सकते हो। तो इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गए, तो ये जानने के लिए कि कैसे, कब, क्यों और कहाँ। ठीक है, काफी इजी है ये। सी जैसे यहाँ पे हो गया एग्जांपल दिया है, डू यू लाइक फिश, जैसे अफर्मेशन और नेगेटिव नेगेशन की बात करें, डू लाइक फिश, क्या आपको फिश पसंद है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस आई डू और नो आई डू नॉट। तो ये जब डू के फॉर्म में पूछा जा रहा है सिंपल प्रेजेंट में, तो आपको हाँ बोलना है या तो ना बोलना है, हाँ मुझे पसंद है, नहीं मुझे पसंद नहीं है। सो सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल है, इज ही वेरी पुअर, क्या वो बहुत गरीब है, हाँ वो है, या तो फिर ना वो नहीं है, तो यस और नो ही देना है। इसमें काफी ईजी है ये चीज। तो बात करेंगे रूल्स ऑफ एडवर्ब की, कुछ रूल्स है एडवर्ब के अंदर भी देखने के लिए। तो पहला रूल हम देखेंगे, बिफोर द वर्ड एनफ, एनफ से पहले एन एडजेक्टिव अंडर पॉजिटिव फॉर्म शुड बी यूज। तो बिफोर द वर्ड एनफ एन एडजेक्टिव अंडर पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव चीज यूज करनी है अगर एनफ यूज करना। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे, दो चीज है जो एक रॉन्ग है एक करेक्ट है, तो उस चीज को हम ध्यान से देखेंगे, ही इज मोर इंटेलिजेंट एनफ टू फॉलो यू, तो यहाँ पे दिखा गया है रॉन्ग है। तो ठीक है, इसमें क्या चेंज करना है हम देखेंगे। एनफ को क्या करना है, बिफोर द वर्ड एन एडजेक्टिव अंडर पॉजिटिव फॉर्म शुड बी, जैसे ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू फॉलो यू, तो कैसा है ये, इंटेलिजेंट है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बाद आपको उसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ही इज स्मार्ट एनफ, आपने सुना होगा, ही इज स्मार्ट एनफ, ही इज कूल एनफ। ठीक है, तो रॉन्ग यहाँ पे देखिए दूसरा, शी इज एनफ लकी टू गेट द जॉब, नो दिस इज रॉन्ग, शी इज लकी एनफ टू गेट द जॉब। तो एनफ वाले तो आपने काफी सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, सुने होंगे, यू माइट हैव हर्ड इन द न्यूज, और कहीं भी आपने जहाँ पे मतलब आपका जो मीडियम होगा लर्निंग मीडियम, वहाँ पे देखा होगा लकी एनफ, स्मार्ट एनफ, इंटेलिजेंट एनफ। तो रूल नंबर 2 हम देखेंगे, व्हेन वी बिगिन विद अ सेंटेंस विद सेल्डम, अगर कोई भी सेंटेंस को हम सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, बैरली, नेदर और नेवर के साथ आप यूज कर रहे हो, अगर शुरू कर रहे हो, तो द रूल ऑफ इन्वर्जन शुड बी अप्लाइड। दैट इज, इसका एक फॉर्मूला है, जैसे एक्सुलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले आपको यूज करना है। जैसे आप देखिए काफी समझने वाली चीज है, बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। हार्डली ही गोज टू स्कूल, हम रेगुलरली ये सेंटेंस को यूज करते हैं, हार्डली ही गोज टू टेम्पल या तो हार्डली ही गोज टू मार्केट, तो ये गलत हो गया। तो हार्डली के बाद आपको यूज करना है यहाँ पे डज ही गो टू स्कूल, हार्डली डज ही गो टू स्कूल, मतलब हार्डली, सेल्डम, रेयरली, ये स्कैर्सली जो चीजें हमें यूज करनी है यहाँ पे एडवर्ब, तो उसके बाद आपको यूज करना है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना, बाकी फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, हार्डली डज ही गो टू द स्कूल, नेवर विल आई सी हर अगेन। तो क्या हो गया, ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमने क्या किया, नेवर के बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब को यूज किया, और उसका देखो दूसरा फॉर्म भी है, आई विल नेवर सी हर अगेन। तो ये काफी इजी है और समझने वाली चीज है, कुछ रूल से ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो थर्ड रूल हम देखेंगे, द एडवर्बियल फ्रेजेस नो लेस देन शुड बी यूज्ड विथ अनकाउंटेबल्स nouns whereas no fewer than is used is counted। तो no less than आप uncountable के लिए यूज कीजिए और no fewer than आप countable के लिए यूज, fewer मतलब few कुछ है जो गिन सकते हैं, इसीलिए हम उसे countable के साथ आप याद रख सकते हैं। लेस कम है, तो कितना कम है आप उसको नहीं काउंट कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल के साथ आपको रूल याद रखना, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, देयर वेर नो लेस देन 40 पीपल हु वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, नो लेस देन 40 पीपल, अब 40 है यहाँ पे काउंटेबल है, लेकिन अब 40 में क्यों आप लेस यूज करें, तो आप देखिए उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, नो फ्यूअर देन 40 पीपल वेर किल्ड इन एक्सीडेंट। तो फ्यूअर हो गया, फ्यूअर मतलब आप गिन सकते हो, काउंटेबल है, तो 40 है तो हमने फ्यूअर यहाँ पे यूज कर लिया, तो इस सेंटेंस को हमने करेक्ट कर लिया। रूल नंबर 4 के ऊपर बढ़ेंगे, द एडवर्ब एज इज नॉट यूज्ड आफ्टर कॉल एंड कंसिडर। फॉर एग्जाम्पल, ही कॉल्ड मी एज अ फूल, नो ही कॉल्ड मी अ फूल, एज अ फूल बेवकूफ की तरह नहीं ना, बेवकूफ ही बोला है उसने, तो ही कॉल्ड मी फूल। जैसे आई ऑलवेज कंसिडर हिम एज माई ब्रदर, मैं हमेशा से उसे एक भाई की तरह देखता हूँ, लेकिन नहीं, आई ऑलवेज कंसिडर हिम माई ब्रदर। तो यहाँ पे राइट और रॉन्ग का जो डिफरेंस दिया गया, तो उसमें आप देख सकते हो कि काफी हद तक मिस्टेक्स है, लेकिन इसे हम सुधार सकते हैं इस रूल के हिसाब से। एंड रूल नंबर 5 हम देखेंगे, द डिराइव्ड एडजेक्टिव्स सच एज इंटरेस्टेड, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिलाइटेड आर यूज्ड विथ मच बट नॉट वेरी। ये काफी इजी और बहुत सारे मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू प्ले क्रिकेट, नो आई एम मच इंटरेस्टेड टू प्ले क्रिकेट। तो ऐसे एडजेक्टिव जो डिराइव किए गए, तो उसमें प्लीज, सेटिस्फाइड, डिलाइटेड, जैसे आई एम मच प्लीज टू बी हियर, तो ठीक है, वहां पे वेरी आपको नहीं यूज करना है, क्योंकि आप उसे क्या कहते हैं, इस रूल के हिसाब से देखा जाता है वेरी आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इंटरेस्टिंग हो तो कितने इंटरेस्टेड हो, प्लीज हो कितने खुश हो,
सेटिस्फाइड हो, एक ठीक है। आई गेस आप समझ गए इस चीज को। सो रूल नंबर 6 ये जो है हम देखेंगे, द एडवर्ब वेरी इज यूज्ड विद पॉजिटिव एडजेक्टिव। वेरी जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ यूज हो रहा है, एंड मच विद कंपैरेटिव। So it is quite easy here for you to understand. He is much cleverer to understand it. It is wrong. It is very cleverer to. It is very clever to understand it. It is the. This is the right formation of the sentence. He is very better today. No, with better that is comparative. So we have to use much. He is much better today. So very is used with positive and much is used with comparative. Okay. I think that is clear with you. And rule number 7, if you see, avoid double negatives in a sentence. So this is I think clear with you already कि एक sentence में दो नेगेटिव आप यूज नहीं कर सकते। scarcely and hardly are already negative verbs. जैसे to add another negative is term redundant. They found scarcely no animals on the island. इन्होंने कोई भी एनिमल को आइलैंड पे फाउंड नहीं किया, क्योंकि स्कैर्सली ऑलरेडी नेगेटिव और आप यहाँ पे नो यूज करें तो दो नेगेटिव यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें 10th में आपको काम आएगी जब ये टर्न इनटू नेगेटिव एंड टर्न इनटू अफर्मेटिव जब क्वेश्चंस आते हैं डू एस डायरेक्टर में, तो उसमें ये चीज ज्यादा काम आएगी। दे फाउंड स्कैर्सली एनी एनिमल्स ऑन द आइलैंड। स्कैर्सली इज ऑलरेडी नेगेटिव, जैसे नॉट अगर देखेंगे दे फाउंड नो एनिमल्स ऑन द आइलैंड, तो स्कैर्सली कैन बी कंसिडर नेगेटिव एंड एनी हो गया तो एक पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया वहाँ पे, तो सही है ये चीज फॉर्मेशन। तो आई गेस ये एडवर्ब्स का टॉपिक क्लियर हो गया। और आखिरी का जो 5 मिनट्स का टॉपिक है, आखिरी के दो जो टॉपिक्स थे वो 8th चैनल के लिए था, लेकिन ऑन ए होल मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ये 7th और 8th के लिए दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों के जो सिलेबस है उसमें ये चीज कवर हो ही रही है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये वीडियो समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।